ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆମେ ସେଦିନ ଦେଖୁଥିଲୁ ଅଜୋ ଡେଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ଟେବଲ୍ସକୁ କ'ଣ କେମିତି ରିଡ୍ କରନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଆଜି ତାକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ଯିବି। ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛ ତ ନିଜେ ନା କ'ଣ ନା? ହଁ କରିଛି। ଜଣା ପଡୁଛି ତ କ'ଣ କ'ଣ କେମିତି ହଉଛି। ଯେତେ ଥର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ ସେତେ ଥର ତମ ପାଇଁ ଭଲ। ହାର୍ଡ କ'ଣ କୋଡରେ କହିଲ? ତ ମୁଁ କରିଛି, ହାର୍ଡ କୋଡରେ ତ ଆମେ ଇଜି ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ହଁ, ଯୋଉ ହାର୍ଡକୋର୍ଟା ଇଜି ଅଛି। ପାରାମିଟରାଇଜେସନ ଟା ଲାଷ୍ଟରେ ଟିକେ ଷ୍ଟେପ ଗୁରା ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ। ମାନେ ଓହୋ, ଯୋଉ ସିଙ୍କ ଆଚ୍ଛା। ସିଙ୍କରେ ଦେଲା। ହଁ ହଁ ହଁ। ସିଙ୍କର ପ୍ୟାରାମିଟରାଇଜ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛୁ, ଆମ ପାଖରେ ମଲ୍ଟିପଲ ଟେବଲ ଥିଲା ନା, ଗୋଟେ ତ ନଥିଲା। କଷ୍ଟମର ଡଟ୍ ସିଏସଭି ମୁଁ ସେଠି ହାର୍ଡ କୋଡ୍ କରିଦେବି। ମଲ୍ଟିପଲ ଆମର ସେଠି ଯାଇକି ଫାଇଲ ଷ୍ଟୋର ହବ। ପାଇଁ ପ୍ୟାରାମିଟରାଇଜ କଲୁ ଆମେ। ଇଜି ଅଛି। ଇଜି ଓକେ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ହଁ ଇଜି ଅଛି। ଏକ୍ସଟେନସନ ଦବାକୁ ପଡିବ ସେଠି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କନକାଟିନେସନ କରୁଛୁ। ଯଦି ଏକ୍ସଟେନସନ ନ ଦେଲେ ଆମେ ଏଠି ରିଡ୍ କରିପାରିବାନି। ଡାଉନଲୋଡ କରିକି ରିଡ୍ କରିପାରିବ, ବଟ୍ ଏଠି ଡେଟା ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଯଦି କରିପାରିବାନି। ଭାଇ ଯଦି ଆମେ କୋରି ଯଦି ନଦେବା, ଯଦି ଆମେ କୋରିରେ ଯଦି ଆଣିବାନି ସୋର୍ସ ରୁ, ଯଦି ଆମେ ଆଉ କିଛି ଡାଟା ସେଟ ଆଣିବା, ମାନେ କୋଉଥିରୁ ଆଣିବନି? ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଡାଟା ସେଟ ଆଣିଛୁ କୋରି ଥ୍ରୋରୁ ଆମେ ରେଜଲ୍ଟ ସେଟ ପାଉଛୁ। କ୍ୱେରି, ଆଚ୍ଛା ହଁ କ୍ୱେରି, ହଁ ଏଡିଟ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ, ହଁ ହଁ। ଆମେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଡାଟା ସେଟ ୟୁଜ କରିବା, ଯେମିତି ଅଲଗା ହଁ, କିଛି ସେଥିରେ ଅଲଗା କେମିତି କୋଉଟା? କରିବା? ଅଲଗା କୋଉଟା ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ? ଷ୍ଟୋର ପ୍ରୋସିଜିଅର ହେଇଗଲା, ନହେଲେ ଷ୍ଟୋର ପ୍ରୋସିଜର ଲେଖିବ କୋଉ ଡେଟାବେସ ରେ ହିଁ ତ ଲେଖିବ ନା। ନା ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଦେଖିଗଲା, ଅନ୍ୟ କିଛି ଡାଟା ନା କୋରି କଣ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯାହେଲେ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କହୁନା, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯାହା କହିବ ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ ଆମର ହବ। ସୋର୍ସ କଣ ରହିବ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କୁ? ଯଦି ଆମର ଡେଟାବେସ ରହିବ, ଡେଟାବେସ ରେ କ୍ୱେରି ତ ଲେଖିବ ନା। ଡାଟାବେସ୍ ଛାଡିକି ଆଉ କିଛି ଯଦି ରହିବ। ହଁ, ସେ କେସ ରେ କ୍ୱେରି କାହିଁକି ଲେଖିବ? ଯଦି ଫାଇଲ ତମକୁ ରିଡ୍ କରିବାର ଅଛି, ଫାଇଲ ଡାଇରେକ୍ଟ ରିଡ୍ କର। କିନ୍ତୁ ସେ ଫାଇଲରେ ବି କୋଉ ଫର୍ମାଟ ଥିବ ସେଟା ତମ ପାଇଁ କ୍ୱେରି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଏନି ହାଉ କ୍ୱେରି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା। ସବୁ କେସରେ କ୍ୱେରି ଲେଖିବ। ଫାଇଲର କିଛି ସ୍ପେସିଫିକ ଫର୍ମାଟ ଅଛି, ଯେମିତି ଡେଟ୍ ଟାଇମ୍ ଫର୍ମାଟ ଅଛି। ଆଜିର ଡେଟ୍ ହଉଛି, କାଲିର ଡେଟ୍ ହଉଛି, ଡେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହଉଛି। ସେ କେସରେ ବି କ୍ୱେରି ଲେଖିବ ନା। ଏନି ହାଉ ତମକୁ କ୍ୱେରି ଲେଖିବାକୁ ବି ପଡିବ। ତମେ କେମିତି ଫିଲ୍ଟର କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ? ଅଦରୱାଇଜ ସବୁ ଜାଗା ଫାଇଲ ରିଡ୍ ହେଇଯିବ ନା। ଆମକୁ ସବୁ ଥୋଡି ନା ରିଡ୍ କରିବାର ଅଛି। ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେ ୱାଇଜ ଫାଇଲକୁ ରିଡ୍ କରିବାର ଅଛି। ଏନି ହାଉ ତମକୁ କ୍ୱେରି ଲେଖିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ଫିଲ୍ଟର ପାଇଁ ଆମେ କ୍ୱେରି ଲେଖିଛୁ। ହଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କଲାବେଳେ ଜଣା ପଡୁଛି କେତେ କଣ ଅଛି। ହଁ ହଁ। ଫିଲ୍ଟର ଆପ୍ଲାଏ କରିବ ନା। ସୋର୍ସରେ 1000ଟା ଡେଟା ସେଟ୍ ଅଛି, ତମକୁ 1000ଟା ଥୋଡି ନା ଆଣିବାର ଅଛି। ଫିଲ୍ଟର କରିକି ଆଣିବ ନା। 2-3ଟା ଆମକୁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତା ପାଇଁ କେମିତି କରିବ? କ୍ୱେରି ଲେଖିବ ନା। ଫିଲ୍ଟର କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବ? ଆଉ ତ କିଛି ଅପସନ ନାହିଁ, କ୍ୱେରି ଲେଖିବ। ଓକେ, ଏବେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ନୋଟବୁକ୍ ୟୁଜ କରିବା ଏଥିରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଟା ଆମର ଥିଲା କପି ଫ୍ରମ୍ GitHub and from ADLS Gen 2, and ସେ ଫାଇଲଟା ସେଟା ବୋଧେ ଆମେ ସେଭ୍ କରିନଥିଲେ। ମଲ୍ଟିପଲ ଫାଇଲ ଯେମିତି ଠିକ୍ କରନ୍ତି। ତମେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁନ ବୋଧେ? ଯଦି କରିଥିଲେ ଏଠି ତ ଆସିଥିବା କଥା। ସେଭ୍ ହେଇନି। ନା ନା ଭାଇ, ମୋର ସେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଛି, ପ୍ରଡ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଛି। ସେ ଓହୋ, ମାନେ ସୋର୍ସ ଯୋଉ ସୋର୍ସିଂ ଗ୍ରୁପ ଯୋଉ ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ହଁ, ସେଟା ବି ଠିକ୍ ଚଳିବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ। ଯୋଉଥିରେ ହେଲେ କର, ବଟ୍ କର। ଓକେ। ସୋ ଏବେ ଓକେ। ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଏଠିକି ଯିବା, ହୋମକୁ ଯିବା ଆଣ୍ଡ ଏଟା ୟୁଜ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। Azure Databricks ପ୍ରୋସେସିଂ ପାଇଁ। ଡାଟା କ୍ଲିନିଂ ପାଇଁ। हाँ, डेटा क्लीनिंग, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा रैंगलिंग ଯାହା କହୁଛ କୁହ ଏକା କଥା। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ପାର୍ଟ ଯୋଉ ହେଲା ନା, ETL ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କଲେ ଡେଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଟା Azure ଡେଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଆମେ କ'ଣ କଲେ? ଡେଟାକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ଟ କଲେ। ଡେଟା ଆମର ଥିଲା ସୋର୍ସରେ, ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଲେ, ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କଲେ ADLS Gen 2 ରେ। ଏକ୍ସଟ୍ରାକ୍ସନ କାମ ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଲା। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ କରିବା ନା, ସେଟା ର ଡେଟା ଅଛି। ର ଡେଟାକୁ ଆମେ କ୍ଲିନ୍ କରିବା। କୋଉଠି କରିବା? Azure Databricks ରେ କରିବା। Okay. So Azure Databricks is a tool which is used to handle big data. So ଏଠି ଆମେ ଲଞ୍ଚ କରିବା workspace କୁ। ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆଉ ମେଟା ଡାଟା ଭିତରେ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ? କୋଉ ଆକ୍ଟିଭିଟି? ମେଟା ଡାଟା ଗୋଟେ ଅଛି। ହଁ, ମେଟା ଡାଟା। ତାପରେ
ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଟା ଆମର ଲୁକଅପ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଆମେ କରୁନଥିଲେ ହଁ ହଁ ସେଇଟା ହଁ ମାନେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ରହିବ ଦୁଇଟା ଦେଖ ମେଟାଡାଟା ମେଟା ଡେଟା ଆକ୍ଟିଭିଟି ତମର କଣ ଅଛି କି ଧରାଯାଉ ତମେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ ଟା ରିଡ୍ କଲ ଓକେ ସେ ଫାଇଲରେ ତମର ନମ୍ବର ଅଫ କଲମ୍ସ 10ଟା ଅଛି ସେ ଫାଇଲର ସାଇଜ ଧରାଯାଉ 500 MB ଅଛି ଆଉ ସବୁ କଲମରେ ଡେଟା ଟାଇପ ଇଣ୍ଟିଜର ଅଛି କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଅଛି ଏ ସବୁ କିଛି ତମେ ଭେରିଫାଇ କରିବ ୟୁଜିଂ ଗେଟ୍ ମେଟାଡାଟା ଆକ୍ଟିଭିଟି ମେଟାଡାଟା ମିନ୍ସ ଡେଟା ଆବାଉଟ ଡେଟା ଠିକ ଅଛି ସୋ ତମର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କଷ୍ଟମର ଡେଟା ଅଛି ଫାଇଲ ଅଛି କଷ୍ଟମର ଫାଇଲ ସେ କଷ୍ଟମର ଫାଇଲର ସାଇଜ କେତେ କଷ୍ଟମର ଫାଇଲ ନାଁ କଣ କଷ୍ଟମର ଡଟ୍ CSV କି କଷ୍ଟମର 123 ଡଟ୍ CSV ତାର କେତେ କଲମ ଅଛି ନମ୍ବର ଅଫ କଲମ ଏ ସବୁ କିଛି କଣ ମେଟା ଡେଟା ନା ଡେଟା अबाउट डेटा दैट्स कॉल्ड मेटा डेटा ठीक तो ये सब जिनस तुम कैप्चर कर पार गेट मेटा डेटा एक्टिविटी थ्रू लुकअप एक्टिविटी कौन तुम कंप्लीट डेटा तुम लुकअप कल सोर्स रु नहीं कि तुम सिंक को जब नहीं कि जाऊच से केस तुम लुकअप एक्टिविटी यूज कल कि हाँ मोर एतिकटा टेबल अच्छी मुझे रीड करने को चाहूँगी दैट्स इट से देखिଥିଲି ତ ଗୋଟେ अच्छा ଏଠି ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେକ୍ସନକୁ ଯିବା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେକ୍ସନକୁ ଗଲା ପରେ ଏଠି ଅଲରେଡି ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି ଏଠି ଯୋଉ ବି ତୁମେ ରନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଯାହା ବି ରନ୍ କରିବ ପାଇଥନର କୋଡ୍ କି ପାଇସ୍ପାର୍କର କୋଡ୍ କି SQLର କୋଡ୍ ତମକୁ କ୍ଲଷ୍ଟରଟା ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଓକେ ଏଠି ଦି ଟାଇପ୍ର କ୍ଲଷ୍ଟର ଅଛି ଅଲ୍ ପର୍ପସ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଜବ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟ୍ जॉब कंप्यूट ଯେତେବେଳେ ଆମର ଜବ୍ଟା ଟ୍ରିଗର ହବ ଅଟୋମେଟିକଲି ଏଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହବ ତାର କିଛି ଅପସନ୍ ହିଁ ନାହିଁ ମ୍ୟାନୁଆଲ କ୍ରିଏସନର ଅଟୋମେଟିକଲି କ୍ରିଏଟ୍ ହବ ଆଣ୍ଡ ଆଫ୍ଟର କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଜବ୍ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଟର୍ମିନେଟେଡ୍ ऑल पर्पस कंप्यूट ଆମ ପାଖରେ ମ୍ୟାନୁଆଲି ଅପସନ୍ ଅଛି ଏଠି ଦେଖ କ୍ରିଏଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପସନ୍ ଅଛି ଆମେ ଆକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବା ସୋ କ୍ରିଏଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଏଠି ନାଁ ଦିଅ କିଛି ବି ନାଁ ଦେଇପାରିବ ଏତିକି ଦେଇ ଦଉଛି ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଏଠି परफॉर्मेंस सेक्शन ଆସିବା देखिए एठी रन टाइम ठीक अछि 17.3 लॉन्ग टाइम सपोर्ट सिलेक्टेड अछि लेटेस्ट अछि 18.0 बट एटा सिलेक्ट करबनी ऑलवेज LTS वर्जन सिलेक्ट करबो मींस लॉन्ग टर्म सपोर्ट तुम चाहेबो डाउनग्रेड भी कर पारिबो 16.4 यूज कर पारिबो हला LTS स्केला 2.12 मिलुची बट ऑलवेज आमे लेटेस्ट ही सिलेक्ट करबा लेटेस्ट वर्जन हला सो 17.3 ऑटो सिलेक्टेड थिला आमे भी याको रखिबा देन नोट टाइप हमको पचारुछि नोट देखो हमर एटा सिलेक्टेड अछि D4 DSV4 जोतरे कि हमको 16 GB मेमोरी मिलुछि एंड 4टा कोर मिलुछि एटा देखो जेते तमरा अधिक मेमोरी थिबो सेते तमे जेते बिग डेटा हैंडल करिवो बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा अछि से केस रे तुमको मेमोरी रे रिक्वायरमेंट अधिक पड़िबो यदि तुम मेमोरी अधिक नबो से केस रे तुम प्रोसेसिंग टाइम ता टिके रिड्यूस हेइजो बुझि पारछो ना यदि तुम पाखरे किछि काम अछि तुम गोटे पिला को ही सब काम देदब से टाइम लगेबो पाखापाखि 2 घंटा सेही काम ଯଦି ତମେ 10ଟା କାମକୁ ଦେଇଦବ 10ଟା ପିଲାକୁ ଦେଇଦବ ଟାଇମଟା ବଞ୍ଚିଯିବ ନା ଟାଇମଟା କମ ହେଇଯିବ ରିଡ୍ୟୁସ ହେଇଯିବ ସେଇ କେସ୍ ଏଠି ବି ଆପ୍ଲାଏ ହଉଛି D4 DSV4 ରେ 16 GB मेमोरी मिलुची एंड 4टा कोर मिलुची जे तम रिक्वायरमेंट अधिक अछि से केस रे तमे चेंज कर पारे आको D4 8DS सिलेक्ट करिवो जोथरे 192 GB ऑफ मेमोरी मिलुची और 48टा कोर मिलुची इंक्रीज डिक्रीज कर पारिबो एथरे सब टाइप रो अवेलेबल अछि बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट आमे सेटा सिलेक्ट करिबा 256 GB मेमोरी अछि 384 GB मेमोरी अछि सो रिक्वायरमेंट अनुसार आमे आको सिलेक्ट करिबा एंड ऑब्वियसली जितने हाई एंड को हमें जीवा प्राइस भी बढ़ी जीव एटी प्राइस देखो वर्तमान पे प्राइस है 1.5 DBU पर आवर ओके व्हिच मींस डेटा ब्रिक्स यूनिट पर आवर जदि हमें सिलेक्ट करबा D4 DSV4 एंड सिंगल नोड रे जदि हमें जीवा तेबे हम प्राइसिंग एटा रहिला इधर देखिए प्राइसिंग
ट्रिगर ଆମେ schedule କରୁ କଣ କଣ ट्रिगर ପାଇଁ ଆଇଛି ଟିକେଟ ଭଏସ୍ ଭଏସ୍ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି କିଛି ଶୁଭୁନି କ୍ଲିୟର। ଭାଇ ଟ୍ରିଗର ଟା ଆମେ କେମିତି ସିଡ୍ୟୁଲ କରୁ ମାନେ ଜବ ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କରୁ ଅଟୋମେଟିକ ଟ୍ରିଗର କହିବି ନା ରୁହ ଟିକେ, ମାନେ ମୁଁ ଯାହା ପଢିଛି ତାହାରି ଡାଉଟ୍ ପଚାର ନା, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ତମେ ପଚାରୁଛ। କ୍ଲାସ୍ ଅଛି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରିଗର ଫ୍ରିଗର ସବୁ ଅଛି, ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ଅଛି ଏଥିରେ ଯୋଉ ଆମ ଡାଟା ସେସନରେ। डेटा ब्रिक्स से ट्रिगर नु Azure डेटा फैक्ट्री रे ଆମେ ट्रिगर यूज करियो। ट्रिगर हमर Azure डेटा फैक्ट्री रे ଅଛି। ଏ देखो टीए डाटा ହେଲା प्रीमियम, ଆମେ प्रीमियम सिलेक्ट करतले, रीजन ଆମେ इंडिया सिलेक्ट करतले, एटी भी ମୁଁ इंडिया सिलेक्ट करनेबी। ଯାହା ପଢୁଛି ଆगे ତାହା ଡାଉଟ୍ ପଚାର, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଜିନିଷ ତମେ ପଚାରୁଛ, ଏଠି ଫୋକସ୍ ହି କରୁନା ଯାହା ପଢୁଛି। ଅଲଗା ଜିନିଷ ସେ ସବୁ କୋର୍ସ ରେ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ଅଛି, ମୁଁ ତମ କୋର୍ସ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବି ପଠେଇଛି। ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ ରେ ଆମେ ଦେଖିବାନି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ, ଯୋଉଟା ପଢେନି ତା ବିଷୟରେ ଡାଉଟ୍ ପଚାର, ଯୋଉଟା ପଢୁଛି ସେଟା ଜଣା ନାହିଁ। सेंट्रल इंडिया सिलेक्ट करिवा, तापर एटी करेंसी सिलेक्ट करिवा इंडिया, तापर एटा कोन सिलेक्ट करिवा, आर्ली बेसिस सिलेक्ट करिवा, प्राइसिंग टियर 1 एंड 3 इयर सिलेक्ट करिवा, देन एथरे फीचर्स देखिवा। ओके, देन एथरे हमरो हमें कौन सिलेक्ट करथिले, D4 DS V4 D4 DS V4 D4 DS D4 DS V4 आर देखो आमु केते मिलुची रैम 16 GB रैम मिलुची, DB count 0.75 without photon acceleration। ओके, आर प्राइसिंग हमरो पडुची तळगु जीवा डॉलर हे गला, इंडियन करेंसी रे सिलेक्ट करिवा, आर्ली बेसिस प्राइसिंग पडुची आर 37 टंका 0.846 पैसा। ओके, माने रफली अराउंड 38 रुपीस पर आवर हमको कॉस्टिंग पडुची जदि हमें डेटाब्रिक्स यूज करिवा विथ दिस इंस्टेंस D4 DS V4। ओके, एंड वर्तमान पे सेठी देखुतला 0.75 बट एठी हमर देखुची 1.5, बिकॉज़ हमें फोटो एक्सलेशन सिलेक्ट करछो, आगु जदि अनचेक करिवा देन पॉइंट टा मैच कर जो, प्राइस टा मैच करियो 0.75 एठी देखुची, एठी भी देखो 0.75 DBU काउंट देखुची, जार कॉस्टिंग पड़िवा हमरो 38 रुपीस पर आवर। जदि रिक्वायरमेंट अधिक अछि तबे हमें आकु अलगा सिलेक्ट करिवा, फॉर एग्जांपल एटा हमें सिलेक्ट करिवा, देन देखो प्राइसिंग भी बढ़ी गला 12 DBU पर आवर, सो तार प्राइस बढ़ी जीवो ऑलमोस्ट पाखा पाखी 200-300 टका पर आवर। ठीक अछि, सो बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट एटा हमें सिलेक्ट करिवा, अगेन एटा डेवलपर डिसाइड करे ना, एट प्लेटफॉर्म टीम डिसाइड करंती। ठीक अछि, P4 P5 V4 टा सिलेक्ट करिवा, एतो डायरेक्ट 5 रु स्टार्ट होजी। ओके, गोटे काम करिया, प्राइसिंग मॉडल टा बुझिलो D4 DS V5 हमें फोटो एक्सेलरेशन भी अनचेक करियो। फोटो एक्सेलरेशन कोन, ए क्वेरी जहाँ भी तमे लिखियो सेठी की स्पीड एक्सिक्यूट करिवो स्पीड एक्सिक्यूशन कले अगेन ये हमरो टाइम टिके रिड्यूस कर देबो, सेत पे हमें फोटो एक्सेलरेशन सेव कर परिबा, चेक कर परिबा। टिके प्राइसिंग ता अधिक देबा पड़ियो, बट जेहेतु एटा हमरो
टाइमटा कंज्यूम करथिବ सो बुलेट पकेଇକି प्राइसिंग सेम ही ରହିବ। बट वर्तमान पे हमें फोटो ना चेक करिवा हैला एंड ଏଟା D5 ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ 1 DB per hour ଦବାକୁ ପଡୁଛି। ଟର୍ମିନେଟ୍ ଆୱାର ଧର ଯୋଉ ତମେ ଏଟା କ୍ଲଷ୍ଟର ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲ ଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ତମେ କୁଆଡେ ମାର୍କେଟ ପଳେଇଲ ବୁଲିବାକୁ ପଳେଇଲ ଭୁଲିଗଲ ଆକୁ ଟର୍ମିନେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସୋ ଏଟା କଣ 120 minutes which means 2 hours 2 घंटा ପରେ ଏଟା ଟର୍ମିନେଟ୍ ହବ। So 2 घंटा ଯାଏ ଅଲଦୋ ତମେ ୟୁଜ କରୁନା ବଟ୍ ତମକୁ ପଇସା ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ କେତେ 1 DB per hour which is equals to around 45 rupees per hour ମିସ୍ ମିନ୍ସ 90 rupees ତମର 2 ଘଣ୍ଟାରେ ପଳେଇଗଲା फालतूଟାରେ यूज କରିନା बट still ପଳେଇବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିବା ଆକୁ ଅଟୋ ଟର୍ମିନେଟ୍ ରେଡ୍ୟୁସ କରିଦେବା କମ କରିଦେବା କେତେ କରିଦେବା 10 କରିଦେବା 10 ସବୁଠୁ ମିନିମମ୍ ଆଠୁ କମ କରିପାରିବାନି ଦେଖ ଆଠୁ କମ ହବନି ସବୁଠୁ ମିନିମମ୍ ହେଲା 10 which means 10 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଯଦି ଆମେ ଆକୁ ୟୁଜ କରିବାନି ଇନଆକ୍ଟିଭ ରହିବା ତେବେ ଅଟୋମେଟିକ ଏଟା 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ଟର୍ମିନେଟ୍ ହେଇଯିବ ଆମ ପଇସା ଟିକେ ବଞ୍ଚେଇବ ଏଟା ଆଫ୍ଟର 10 ମିନିଟ୍ ଯଦି ତମେ ଭୁଲି ବି ଗଲ କୁଆଡେ ପଳେଇଗଲ ହେଲା ଆଫ୍ଟର 10 ମିନିଟ୍ସ ଏଟା ଅଟୋମେଟିକ ଏଟା ଟର୍ମିନେଟ୍ ହେଇଯିବ ସୋ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବନି କେବଳ ସେଇ 10 ମିନିଟ୍ ଯାଏଁ ଦବ ଯାହା ଯେତିକି ଆସିବ ହେଲା एंड ଯଦି ତମେ ସିଙ୍ଗଲ ନୋଡ୍ ୟୁଜ କରିବ ତେବେ ତମକୁ ଏତିକି ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡିବ ଯଦି ମଲ୍ଟି ନୋଡ୍ ୟୁଜ କରିବ ମଲ୍ଟି ନୋଡ୍ ଆମେ କେବେ ୟୁଜ କରିବା ଯେବେ ଆମ ପାଖରେ ଡେଟା ୟୁଜ ଥିବ ବିଗ ଡେଟା ପେଟାବାଇଟ୍ସ ଜେଟାବାଇଟ୍ସ ଡେଟା ଥିବ ସେଇ କେସରେ ଆମେ ମଲ୍ଟି ନୋଡ୍ ୟୁଜ କରିବା ଯେମିତି ମୁଁ କହିଥିଲି ମୋର ଯୋଉ କାମ ଅଛି ସେଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ पर्सन କୁ ଯଦି ଦେବି ସେ ଅଧିକ ଟାଇମ ଲଗେଇବ ଯଦି ମୁଁ ମଲ୍ଟିପल पर्सन को देवी 10-12टा पर्सन को डिवाइड करदेवी सेबे टाइम टा कम लागियो राइट से केस रे मल्टीपल नोड हम यूज करिवा but एथरे लिखुची this account may not have enough CPU cores to satisfy this one which means हमें ए फ्री ट्रायल रे हमें मल्टी नोड हमें यूज कर परिबानी so that's fine हमें सिंगल नोड यूज करिवा मल्टी नोड रे कोन हमें वर्कर असाइन करछु मल्टीपल वर्कर हमें असाइन कर दो से वर्कर माने पिला माने काम करिवे ठीक है हमें सिंगल नोड यूज करिवा एंड बाकी सब ठीक अच्छे 1 DB पर आवर पड़िबा आउ किछि सेटिंग एथरे करियार नाही एटा मु PS4 आउ ऑप्शन काई आसुनी सेताले V4 ही आसीतला DS D4 DS V4 आसीतला राइट बट इकिन V4 ऑप्शन देखोनी V2 स्टैंडर्ड V5 अछि ठीक अछि किछि असुविधा नहीं आगो क्रिएट करो ठीक अछि एटा क्रिएट होउजी इन द मीन टाइम हम को करिया वर्क स्पेस को जीवा एटी रिसेंट रे तुमको देखियो को फाइल रिसेंटली यूज हेछि कैटलॉग रे तमे देखियो जहाँ भी हमें टेबल गुडा क्रिएट करिवा आगुर हमें हाइव मेटा स्टोर भीतर टेबल गुडा क्रिएट करथिले एबे हमें यूज करिवा हमर यूनिटी कैटलॉग यूज करिवा सो ये टेबल गुडा जेते भी हमें क्रिएट करिवा एठी से एटी देखेबो बर्तन प्लस स्टार्ट होछि सेत किछि टेबल देखौनी टेबल देखेबनी काहे ना हमें गोटे टेबल किछि वे जाय क्रिएट करबो बट जब क्लस्टर स्टार्ट हो ये टेबल शो करिवो जॉब्स एंड पाइपलाइन जहाँ भी हमें अजोर डेटाब्रिक्स से जदी जॉब क्रिएट करिवा से जिंस एठी शो करिवो बट एठी हमें ईटीएल पाइपलाइन बिल्ड करिवानी हमें ईटीएल पाइपलाइन हमरो यूज होची अजोर डेटा फैक्ट्री अजोर डेटाब्रिक्स गोटे बहुत ही पावरफुल टूल अछि एठी तमे सब किछ कर पारो नॉट ओनली तमे डेटा ट्रांसफॉर्म कर पारियो इवन यदि तमे चाहियो डेटा एक्सट्रैक्ट कर पारियो जो काम हमें कले अजोर डेटा फैक्ट्री रे सेम काम हमें अजोर डेटाब्रिक्स रे भी कर पारियो डेटाब्रिक्स itself is a very powerful tool so करि परिबा बट जेहेतु ऑर्गेनाइजेशन माने एई आर्किटेक्चर को फॉलो करछन्ती एक्सट्रैक्शन पाई अजोर डेटा फैक्ट्री यूज करछन्ती सो आमे भी एई आर्किटेक्चर ऊपर काम करिवा अजोर डेटा फैक्ट्री एंड मो ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर एक्सट्रैक्शन डेटाब्रिक्स यूज करनी से अजोर डेटा फैक्ट्री यूज करछि बट ऑप्शन अछि यदि तमे चाहिले करि पारिबो जे कंप्लीटली अजोर डेटाब्रिक्स ऊपर जो ऑर्गेनाइजेशन काम करछन्ती जे खोजुछन जे अजोर डेटाब्रिक्स टाइटल
not Azure data engineer, only Azure Databricks ହଁ engineer ସେମାନେ ETL perform କରିବେ Databricks ଉପରେ। so ଏଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ। ଏଠି ସବୁ କିଛି integrated ଅଛି। compute ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ଆମେ cluster create କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ job କୁ run କରିବା, notebook କୁ run କରିବା, ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦରକାର। without this ଆମର run ହବନି। ହଁ serverless ତମେ use କରିପାରିବ, but serverless ସବୁ ରେ କିଛି functionality ସେଥିରେ lag ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜର create କରିବା, କାହିଁକିନା ଆମେ ୟାକୁ ମନିଟର କରିପାରିବା, ଆମେ ୟାକୁ ସବୁ କିଛି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବା। ଯାହା ବି ଇସ୍ୟୁ ଥିବ ସେଟା ଆମେ ଦେଖିପାରିବା, ନିଜେ ସବୁ କିଛି ୟାକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିପାରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନିଜର କମ୍ପ୍ୟୁଟ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛୁ, ବନଉଛୁ ଗୋଟେ। ଯାହା ବି ଜବ୍ ଫବ୍ ରନ୍ ହବ ଏଠି ତମକୁ ଶୋ କରିବ କୋଉ ଜବ୍ ରନ୍ ହେଲା। ଆମେ ଯଦି ଟ୍ରିଗର କରିବା ଡେଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ବି ଏଠି ତମକୁ ଶୋ କରିବ। ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ଏ ଜବ୍ ରନ୍ସଟା ଏଟା ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଇଏ ଗୁଡାକ ହେଲା ML ର ପାର୍ଟ, ଯୋଉ କି ଆମ କାମରେ ଆସିବନି, ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। AI ଆଣ୍ଡ ମସିନ୍ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ର ଜିନିଷ ଅଛି। ଯଦି ତମେ AI ଜାଣିଛ ତେବେ ଏଠି ଆସିକି ତମେ ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଫିଚର୍ସ ଗୁଡାକ ଅଛି। ଉପରେ ଥିଲା ଡେଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ର ପାର୍ଟ, ଏସବୁ AI ML ର ପାର୍ଟ ଅଛି। ସୋ ଇଗ୍ନୋର କର ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ତମେ ୟୁଜ କର ଏସବୁ ଉପରେ ଜିନିଷ। ନାଉ ଯଦି ଆମେ ୱାର୍କ ସ୍ପେସ୍ କୁ ଆସିବା, ୱାର୍କ ସ୍ପେସ୍ ରେ ଆମର ୱାର୍କ ସ୍ପେସ୍ ଭିତରେ ୟୁଜର୍ସ କୁ ଯିବା। ୟୁଜର୍ସ ଭିତରେ ତମ ନାଁ ଅଛି। ଓକେ, ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ଯେତେବେଳେ ତମେ ଆକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବ ତମର ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର ଟା କ୍ରିଏଟ ହେଇଯିବ ଅଟୋମେଟିକାଲି। ସୋ ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡର କ୍ରିଏଟ କରିବି। ଆମ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନାଁ ଦେଇଦେବି ମୁଁ, ଠିକ ଅଛି। ତାର ଯୋଉ RCA, Retail Chain Analytics। Retail Chain Project, RCA ମୁଁ ସ୍କିମାର ନାଁ ଦେଇଦେବି, Retail Chain Project। ଓକେ, and then ଆ ଭିତରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୋଟବୁକ୍ କ୍ରିଏଟ କରିବି। ନୋଟବୁକ୍ ର ଅପସନ୍ ଅଛି। ଦେଖ ନୋଟବୁକ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ତମେ ଆ ଭିତରେ ଆସିକି କ୍ରିଏଟ କର, ଯୋଉଠି ନାହିଁ ସେଠି କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବ। ମୁଁ ବାସ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରୁଛି ସବୁ ଜିନିଷକୁ। ଇନ୍ ଫ୍ୟୁଚର ତମେ ଅଲଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବନେଇବ ଏଠି, ଠିକ ଅଛି। ସେ କେସରେ କଣ କରିବ, ସେ କେସରେ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ନୋଟବୁକ୍ ଗୁଡାକ ଏଇ ଫୋଲ୍ଡରରେ ରଖେଇବ। ହେଲ୍ଥ କେୟାର ର କଲ, ଟେଲିକମ ର କଲ, ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି ତମର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବଢି ବଢିକା ଯିବ ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ ର କଲ। ଆମେ ଏକ କାମ କରିବା ରିଟେଲ ଚେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଉପରେ। ସୋ ରିଟେଲ ଚେନ୍ ରେ ଆମେ ନୋଟବୁକ୍ କ୍ରିଏଟ କରିବା। ଏଠି ଅପସନ ଅଛି ଅଗେନ୍ ସବ୍ ଫୋଲ୍ଡର କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବ, ଫାଇଲ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବ। ଏଟା AIML ର ଜିନିଷ। ଗିଟ୍ ଫୋଲ୍ଡର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିପାରିବ। ଆମେ ଗିଟ୍ ଫୋଲ୍ଡର ଆଉ ଦି ତିନି କ୍ଲାସ୍ ପରେ ଗିଟ୍ ଫୋଲ୍ଡରକୁ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନୋଟବୁକ୍ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବା। ନୋଟବୁକ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ନୋଟବୁକ୍ କ୍ରିଏଟ ହେଇଗଲା। ଆର ପାଥ ଦେଖିପାରିବ, ଏ ରିଟେଲ ଚେନ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଭିତରେ ଅଛି। ଓକେ, ଆର ନାଁ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ହେଲୋ ୱାର୍ଲଡ ଦେଲି। ସିମ୍ପଲ। ଏଟା କଣ ହବ, ଆମର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ କଣ? ଏଟା ହେଲୋ ୱାର୍ଲଡ ତ ରହିବନି, ଆମେ ଏଠି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଚାଲ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ହିଁ ଦେଇ ଦଉଛି। ଆମର ର ଡେଟା ଆସିଲା, କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମ ସୋର୍ସ ଥିଲା Azure SQL, ରାଇଟ୍। କମ୍ପ୍ୟୁଟର Azure ସ୍କ୍ରିନ୍ SQL, ହଁ Azure SQL ଆମେ ଡେଟା ନେଇକି ଆସିଥିଲେ and ତାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିଥିଲେ କୋଉଠି, AWS Gen 2 ରେ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍। ସୋ ସେଟା କଣ ର ଡେଟା, କିଛି ଆମେ କରିଥିଲେ କି ନଥିଙ୍ଗ, କିଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆପ୍ଲାଏ କରିନଥିଲେ। ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ କ୍ଲିନ୍ କରିବା। କ୍ଲିନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଆମେ କୋଡ୍ ଲେଖିବା, ଠିକ ଅଛି। ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ପାଇଁ ଆମେ Azure Databricks ୟୁଜ କରୁଛୁ। କାହିଁକି ୟୁଜ କରୁଛୁ? କାହିଁକିନା ଏଟା ଫାଷ୍ଟର ଅଛି, ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ଅଛି। ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଓକେ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଆମକୁ କଣ ଦରକାର, ଏଠି କୋଡିଂ ଦରକାର। କୋଡିଂ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ, କୋଡିଂ ପରେ କରିବା। ଜଷ୍ଟ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି ହେଲୋ ୱାର୍ଲଡ, ଠିକ। हेलो वर्ल्ड ଏଠି ଲେଖିଲି। ଓକେ, ନାଉ ଏବେ ଆମେ ଏଇ ହେଲୋ ୱାର୍ଲଡ ଟା ମତେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। କେମିତି ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିବି? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ପାଇପଲାଇନ ଯେତେବେଳେ ରନ୍ ହବ ମୋ ସେ ହେଲୋ ୱାର୍ଲଡ ଟା ପ୍ରିଣ୍ଟ ହଉ। ମୁଁ ଯଦି ଚାହିଁଲେ ଏଠି ରନ୍ ସେଲ୍ କରିବି, ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯିବ ଏଠି ହେଲୋ ୱାର୍ଲଡ। ଚାଲ ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଠି ମତେ କହୁଛି ସେଲେକ୍ଟ କର ତମ କ୍ଲଷ୍ଟର ଟା। ୱିଦାଉଟ୍ ଦିସ୍ ମୁଁ କହିଥିଲି ହେଇପାରିବନି। ତମର ଆକ୍ଟିଭ କୋଉଟା ଅଛି, ଡେଭଲପର୍ସ ଆକ୍ଟିଭ ଅଛି, ସେଲେକ୍ଟ କର।
पैच एंड रन करो तो देखो जो भी जिनस ये रन करिवो तुमको क्लस्टर दरकार से क्लस्टर में आम क्रिएट कले डेवलपर्स ना रे ओके एंड एटा फास्ट टाइम पे टिके टाइम लगे देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगला जहाँ चाहिए तुम ये लिखि पारिबो एंड कंपेयर टू योर ऑन प्रेमाइज सीक्वल सर्वर किंबा ओरेकल किंबा एसएपी हाना जो भी डेटाबेस तमे नहीं नियो हला सेठी तमे जो भी क्वेरी लिखियो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दैट टेबल नेम सेठी जति टाइम लागिवो कंपेयर टू दैट एटा बहुत अल्प समय लागिवो एटा बहुत फास्ट अछि बट एटी आमे तो एसक्यूएल करिनु एसक्यूएल भी करिक देखि दउची एटा ए सेल को जदि मु जिबी एटी देखो पाइथन सिलेक्टेड अछि एटी क्लिक करो तब मल्टीपल लैंग्वेज मिलिबो पाइथन अछि एसक्यूएल अछि स्काला अछि आर अछि जहाँ भी जी भी जो जिनसटा जानी छी सीखी छी जे स्काला सीखी छी स्काला सेलेक्ट करके स्काला ऊपर कोडिंग करिवो जे पाइथन सीखी से पाइथन सेलेक्ट करके पाइथन ऊपर कोडिंग करिवो सो बेस्ड ऑन दैट यदि तुमको एसक्यूएल करे क्वेरी करियर अछि एसक्यूएल एटी सेलेक्ट करो एटी आसीगला हमरो मैजिक कमांड परसेंटेज एसक्यूएल एंड एटी तमे लिखि पारियो सेलेक्ट करी सो सेलेक्ट 1 लिखि देली मु एंड आकु जदि मु एक्जीक्यूट करिवि तबे 1 हमर आउटपुट रे आसीगो हम अगर किसी टेबल नहीं से मु टेबल तो लिखी नहीं सिलेक्ट 1 लिखी एसक्यूएल क्वेरी आसीगला ये जति की टाइम लागिवो हला जति टाइम लागिवो एटा बहुत कम लागिवो कंपेयर टू योर ऑन प्रीमाइस डेटाबेसेस सेटा हमें देखिया कंपेयर जतले करले जणा पड़िबा हला टेबल हमरे दी जगह क्रिएट करबा ऑन प्रीमाइस रे भी क्रिएट करबा एंड एटी भी क्रिएट करबा क्वेरी सेम क्वेरी एक्जीक्यूट करबा देखियो सेठी केते टाइम लागु छै नेटी केते टाइम लागु छै ओके नाउ ए जिनस मु एठी रन कली सेट पे मते आउटपुट मिलिला मु ए जिनसटा चाहुनी मु चाहू छी मो पाइपलाइन थ्रू रु ए जिनसर मते आउटपुट मिलु ओके सो हमें कोन करे आ गोटे लाइन एठी लिखिबा ये प्रिंट लिख देवा लिखिया पाइपलाइन एक्सिक्यूटेड ओके एटा मते आउटपुट दरकार तो मु एबे जीबी मोर पाइपलाइन को एंड आको सब मु डिलीट करिवि डिलीट इन द सेंस जस्ट कैंसिल करिवि या गोटे पाइपलाइन बनेबी pl invoke notebook ओके एंड देन एटी मु सर्च करिवि नोटबुक एक्टिविटी सर्च करो एंड एटी जहाँ चाहू ता दे पारिबो बैक नोटबुक अजोर डेटाब्रिक्स रे जीवा एंड देन एटी गोटे हमको लिंक सर्विस दरकार काइना एबे हमें कनेक्ट करिया को चाहू छ अजोर डेटाबेस अगेन एटा अलगा गोटे रिसोर्स सेट पे हमको लिंक सर्विस दरकार किछि लिंक सर्विस नाही एटी हमें क्रिएट करिवा ls adb एंड देन सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करिवा ad सब्सक्रिप्शन वर्कस्पेस सेलेक्ट करिवा वर्कस्पेस हमर एटा डेवटा सेलेक्ट करिवा एंड क्लस्टर को हमको सिलेक्ट करिया पे सो क्लस्टर ऑप्शन अछि कम तुमको नुआ दरकार कि एग्जिस्टिंग दरकार कोटा दरकार तुम चाहिले नुआ सिलेक्ट कर पार बट जेहेतु हम पाखरे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अछि एबे हम जस्ट क्रिएट कले क्लस्टर को ता हमें कहबा एग्जिस्टिंग ता सिलेक्ट करो बुझि पाइलो जोटा हमर डेवलपर्स ता अछि सही टाइम सिलेक्ट करिवा जेबे भी हमें पाइपलाइन ता एग्जीक्यूट करिवा ऑटोमेटिक से क्लस्टर डेवलपर क्लस्टर ता एक्टिव हे जियो ओके एक्टिव हो एंड देन हमर जा भी क्वेरी लिखा है वो नोटबुक रे से क्वेरी को एटी एक्जीक्यूट करिवो एंड आफ्टर 10 मिनट्स एटा ऑटो टर्मिनेट हे जिवो ऑथेंटिकेशन टाइप हमर एक्सेस टोकन दबा एक्सेस टोकन नो वैल्यू कोन एक्सेस टोकन नो वैल्यू हम एटी बाहर कर दबा एटा मु डुप्लीकेट करे टैब टाकू बुझी पाले सब जिनस कोन रिसेंट कैटलॉग कोन कंप्यूट हमको एट पाइन दरकार काइना जो भी जहाँ भी क्वेरी हमें लिखिबा ताको एक्जीक्यूट करिया पे हमको कैट कंप्यूट सेक्शन दरकार ओके ये देन ओके कौन दरकार थिला टोकन दरकार ओके टोकन पाई आमे जिबा सेटिंग्स को सेटिंग्स रे आई थिंक डेवलपर रे मिल जिबा कथा डेवलपर्स टोकन हाँ एक्सेस टोकन ओके सो मैनेज ऊपर क्लिक करिया जनरेट अ न्यू टोकन ऊपर क्लिक करिया एंड एटी लिख देबा RCA for details in analytics project RCA project comment is optional केते डे परे ए टोकन टा एक्सपायरी हबो सो डिफॉल्ट अछि 90 डेज तमे चाहेबा को रिड्यूस भी कर परियो 1 डे 2 डे भी कर परियो सो वर्तमान पाई मु 1 डे करूची सो आफ्टर 1 डे ए टोकन टा एक्सपायर हे जिवो देन अगेन तमे नुवा टोकन जनरेट करियो ओके
सो जनरेट मु कली एंड एटा लिखुची मेक श्योर टू कॉपी दिस टोकन नाउ अदरवाइज तमे परे एटा सीन कर परिबनी। ठीक मु एटा कॉपी कर देली डन ऊपर क्लिक करिवि देखो तुमको आउ से टोकन टा देखा जाउनी सेट पे से कहितला कॉपी करिया पे तुम कॉपी कर दीजिए पे मु जीबी उनथरे एटिकी अ, 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 ये सही ठीक ठीक। से ये आसी छै ना ऊपर स्क्रीन टा ठीक है एक्सेस टोकन मु एटा पास कर देली एंड एटा कहूची चूज फ्रॉम एक्जिस्टिंग क्लस्टर क्लस्टर हमें एटी लिखिले एक्जिस्टिंग क्लस्टर तो रहिबो बट क्लस्टर ना को एग्जैक्टली आम क्लस्टर डेवलपर। ना डेवलपर हाँ हाँ हाँ। तो एटी लोडिंग होची हाँ ओके एबे सिलेक्ट करिया डेवलपर सिलेक्ट करिया अच्छा एटी डीटा देखौची डेवलपर क्लस्टर एंड डेवलपर एटा मु क्रिएट करथली पूर्वरु बर्तमान एटा एक्टिव अछि एटा सिलेक्ट करिया जोटा एक्टिव इनएक्टिव से तो मतलब नहीं है ऑलरेडी एटा निजे ही एक्टिव ताकू कर देबो यदि इनएक्टिव अछि तो तम पाखरे ऑप्शन अछि तुम कोटा सिलेक्ट करियो डेवलपर सिलेक्ट करिया एटा को एमती हेला डेवलपर सिलेक्ट करिया सेकंड हाँ ओके डेवलपर सिलेक्ट करिए देन टेस्ट कनेक्शन कर दवा देखिए किसी एरर नहीं किसी एरर नहीं देन पैरामीटराइज एटी भी तमे कर परिबो जहाँ भी पैरामीटराइज आमे करथिले कोडी एडी एफ रे से जिनसे भी कर परिबो बर्तमान आको स्किप करिवा काहेकि आप पाखरे मल्टीपल जेहेतु क्लस्टर अछि से सब जिनसे भी तमे चाहबो एटी पैरामीटराइज कर पाइबो बट बर्तमान ପାଇଁ आको एमती रखिबा देन क्रिएट करिबा सब किछि ठीक अछि क्रिएट कर दवा ओके क्रिएट हेगला अब देखो हमर कोन लिंक सर्विस क्रिएट हेगला लिंक का करू जे तमे अजोर डेटा फैक्ट्री रे नोटबुक सहित लिंक कल सो दैट आमे कॉल करिबा हमर नोटबुक को लिंक हेगला नाउ नोटबुक आम पाखरे मल्टीपल नोटबुक हे पारे बर्तमान आम पाखरे गोटे नोटबुक अछि ट्रांसफॉर्मेशन और भी हे पारे 10 20 टा हे पारे सो आउट ऑफ दोस 10 20 टा आमे कोटा सिलेक्ट करिबा सेही दिनसटा एटी सेटिंग्स रे जिबा नोटबुक रा पाथ एटी हमको डिफाइन करिया पड़ियो ओके तो मु ब्राउजर पर क्लिक करिवि एग्जैक्ट जो नोटबुक आमको दरकार से नोटबुक आम एटी सेलेक्ट करिबा यूजर्स ऊपर जिबि यूजर्स भितर यूजर्स रे कोड थिला हाँ आ भितर थिला कोडा थिला रिटेल चेन प्रोजेक्ट हाँ एटा सेलेक्ट करिबा ट्रांसफॉर्मेशन फाइल हमर अछि नोटबुक अछि फाइल तो नोटबुक सेटा हमें सेलेक्ट इन केस मल्टीपल तांता आउट ऑफ दोस हमें सेलेक्ट करताने ओनली ट्रांसफॉर्मेशन नाउ सेलेक्ट ओके साम पगर कंप्लीट पाथ आसीगला देखो ये पार्ट था ओके कंप्लीट पाथ व्हिच मींस जेबी भी हम ये पाइपलाइन ट्रिगर करिवा सेतळे ए पाथ को जीवो एंड से पाथ रे जा भी क्वेरी लिखा हितो से ताको एक्जीक्यूट कर दो ना एबे हमें वैलिडेट करिवा किछि एरर नाही एंड देन डीबग करिवा सो एमटी कॉल करा जाए inside our Azure Data Factory. এটা भी गोटे interview question. How do we call notebook activity inside our Azure Data Factory? So this is how we are calling. Step गुड़ाक बुझीगल सिंपल अच्छे किसी ना गोटे लिंक सर्विस क्रिएट करिवो लिंक सर्विस क्रिएट कला परे ता पाथ ता सेठी जाइकी करिवो केबे भी कहबनी कि मु नोटबुक एक्टिविटी एठी नोटबुक मु डाउनलोड करथली डाउनलोड कला परे मु अदर डेटा फैक्टरी कॉल करथली सेमती करा जाए ना एडा कंप्लीटली ऑनलाइन बेस्ड अछि एडी डाउनलोड भी कर परिबो फाइल को जीवो जहाँ भी तुम क्वेरी फ्वेरी लिखिछो एडी एक्सपोर्ट कर परिबो ओके डाउनलोड फाइल करिवो सेमती हुए ना हमको एठी पाथ देबाकू पड़े हाँ हेगला सक्सेस हला परे इनपुट को जति गली इनपुट देखे देला मोर को पाथ रो आसला एंड देन मु डिटेल्स को जीबी डिटेल्स रे ए रन पेज यूआरएल को जीबी एडी हमें देखिया आउटपुट पे देखो आउटपुट हमको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कला वन भी प्रिंट कला पाइपलाइन एग्जीक्यूटेड एटा भी प्रिंट कला से जेतला एटा तो हमर कोन जेतु से पाइपलाइन हमें सेव करी नथले
ସେଥିରେ ଦିଟା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା, ତିନିଟା ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥିଲା ଲୁକଅପ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଦେନ୍ ଥିଲା ଫର୍ ଇଚ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ପରିଚିତ ଫର୍ ଇଚ୍ ଭିତରେ କପି କପି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଥିଲା। ଆକ୍ଟିଭିଟି ଠିକ ଅଛି, ତ କପି ଆକ୍ଟିଭିଟି କଣ କଲା, ଡେଟାକୁ ଆମର ନେଇକି ନେଇକି ଷ୍ଟୋର କଲା ସୋର୍ସ ADLS ସିଙ୍କ Gen2 ରେ। ହଁ, ADLS Gen2 ରେ ଯାଇକି ନେଇ ଷ୍ଟୋର କଲା। ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ ADLS Gen2 ରୁ ଆମେ ଡେଟାକୁ ରିଡ୍ କରିବା। ଓକେ, ଡେଟା ରିଡ୍ କରିବା ଭାୟା ଆମର ଇଏ ନୋटबुक। ଦିଟା ଭିତରେ ବି କନେକ୍ସନ ଦରକାର। ରିଡ୍ କଲା ପରେ ଦେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ଆପ୍ଲାଇ ହବ। ତ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ ପାର୍ଟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଦେଲି। ଓକେ, ବଟ୍ ଏଟା ଆମେ ADF ରୁ ତ ଡେଟା ରିଡ୍ କଲେନି ନା, ଏ ନୋटबुक ଡେଟା ନୋଟବୁक ରେ ଅଛି, ରାଇଟ୍। ନୋଟବୁक ରେ ଯାହା ବି କ୍वेରି ଥିଲା ସେ डायरेक्ट क्वेरी ର आउटपुट हमको शो कर देला। बट ଆମ डेटा ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଅଛି, ADF ରେ ଅଛି, ସରି स्टोरेज अकाउंट रे ଅଛି, ADLS Gen 2 रे ଅଛି। ओके, वेट, ଏଠି ମିରୋ ଅଛି। पेंट खोले, पेंट। टेक्स्ट ऑप्शन जाई एटा, एटा आगे हमर थिला अजर एसक्यूएल रे डेटा। ओके, अजर एसक्यूएल रो डेटा आसिला, देन अजर एसक्यूएल रो डेटा जो आसिला लिखी तो पारिबनी, ता पे नोटपैड यूज करिया। देखो आम सोर्स थिला अजर एसक्यूएल। ठीक, अजर एसक्यूएल रे मु कोन कली, मु यूज कली ADF अजर डेटा फैक्ट्री। ओके, अजर डेटा फैक्ट्री आपको यूज करी मु कोन कली, रॉ डेटा नहीं के आसली, राइट। वी ingested raw data from source। स्टेप 1 मु लिख देबी स्टेप 1। ठीक, स्टेप 1 कौन कली, we ingested raw data from source, source is our ASQL Azure SQL। ओके, via ADF Azure Data Factory। ठीक, एटा हला स्टेप 1 हमरो। देन स्टेप 2 रे हमें कौन कले, stored that data as CSV file in ADLS DLS Gen 2 Gen 2। ओके, थर्ड स्टेप हमें कौन करिया, अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन। अप्लाई ट्रांसफॉर्मेशन छाड़, हमें एठी लिखिया सिंपल भाषा रे, क्लीन रॉ डेटा इन Databricks। ठीक है, हमें रॉ डेटा को क्लीन करिवा। ए जो रॉ डेटा ADLS Gen 2 रे अछि ताको हमें क्लीन करिवा इन Databricks। बट केमती करिवा, बिफोर दैट we need to make a connection between ADLS Gen 2 and Databricks। ए दीटा भीतर हमको कनेक्शन दरकार, देन ओनली हमें डेटा को रीड कर पारियो। एबे जो एटा हमें देखिले ट्रांसफॉर्मेशन पार्टटा, जस्ट मु Databricks नोटबुक एक्टिविटी को कॉल कर देली Azure डेटा फैक्ट्री भीतर। बट रियल हमर डेटा कोडी अछि ADLS Gen 2 रे। ADLS Gen 2 रो हमको डेटा रीड करियार अछि। ओके, मु एटिकी जीवी नोटबुक रे, मते जदी मु तमरो ओपन करछि रो, ADLS Gen 2 को जीवी कोड अछि ADLS Gen 2। ADLS Gen 2 रे गली, देन ब्राउजर को जीवी, ब्राउजर रे आसला परे कंटेनर को जीवी, कंटेनर रे ब्राउज रे थिला, ब्राउज रे हमर कोन थिला सेल्स एलटी, सेल्स एलटी रे हमर फाइल्स को अछि। ए फाइल को जदी मते रीड करियार अछि, ओके, इन Databricks, तो हाँ ओके, से फाइल को मते रीड करे अछि। तो से एटी कोन, एटा नोटबुक रे पाथ मु देली, राइट। बर्तमान नोटबुक रे पाथ दिया अछि, अब मते से फाइल ता रीड करे अछि, कोन केमती रीड करी, ता पई हमको कनेक्शन दरकार। Databricks सहित Databricks रो ADLS Gen 2 सहित कनेक्शन दरकार, then only we can connect this। ओके, सो कनेक्शन हमें केमती क्रिएट करिया, सेटा भी बहुत सिंपल अछि।
connect ADLS Gen 2 to Azure Databricks. LinkedIn connection Databricks. ମନେ ରଖିବାର ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ଅନଲାଇନ୍ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି, ଜଷ୍ଟ ତାକୁ କପି ଆଣ୍ଡ ପେଷ୍ଟ କରିବାର ଅଛି। ସେଇଟା ମୁଁ ଏଇ କୋଡଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। ବଟ୍ 1 ସେକେଣ୍ଡ। ଏ ଲିଙ୍କଟା ଭଲ ଅଛି କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍। ବଟ୍ ହେଲା connected using Python, okay, and service principal ଅଛି, authentication। ଠିକ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଇଟା ତମେ go through କର ନିଜେ, ଓକେ, ଟ୍ରାଏ କର ନିଜେ। and one thing ମୁଁ ତମକୁ ନିଜେ ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି କାହିଁକିନା ତମର ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହବ, ଅଦରୱାଇଜ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କର ସବୁ ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ। ଏ କ୍ଲାସ୍ ଆମର କାଲି ହେବ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ତମକୁ ଇଏ କରୁଛି। column right database connection हम कोड अपलोड करते हैं, selecting columns in all JSON फाइल यदि नहीं, okay। हाँ एडी ମୁଁ अपलोड करছি। how to connect ADS Gen 2 to Databricks using service principal। এই স্টেপটা ଦେଖିବ, ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ସ୍ଟେପ୍ ଅଛି। ଓପନ୍ ନାହିଁ ଏଇଟା, ଲାଷ୍ଟ ସେକେଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ, ଓକେ। how to connect ADS Gen 2 to Databricks using service principal। ଏଥିରେ ତମକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସ୍ଟେପ୍ ମିଳିଯିବ। ସେଇ ସ୍ଟେପ୍ ହେଲା ଏଇଟା, ଓକେ। କାଲି ଆମେ ଏଇଟା କନେକ୍ଟ କରିବା, କାହିଁକିନା ଏଥିରେ କନେକ୍ସନ୍ କରିକି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବା, ତମେ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ହେଲା। ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, କେମିତି କ'ଣ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ଟ୍ରିଗର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ବି ଦେଖିବା ଆମେ। ଏଟା ଏଟା ଆଗେ ମୁଁ ସେଭ୍ କରି ରୁହ। ଦେଖ ADLS Gen 2 କୁ ତମକୁ ଯଦି ADB ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ମଲ୍ଟିପଲ୍ ୱେଜ୍ ଅଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ୟୁଜିଂ access key, ଗୋଟେ ହେଲା SAS token, ଓକେ, ଗୋଟେ ହେଲା ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା Azure Key Vault। so Key Vault and service principal almost similar ହି ଅଛି। so ତିନିଟା ways ଅଛି, ଏଠି ବି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ଟୋଟାଲ ତିନିଟା ୱେରେ ତମେ access କରିପାରିବ, ଓକେ। so but most popular ହେଲା using Azure Key Vault, କାହିଁକିନା ଏଟା key value pair ଥିବ and value କୁ ଆମେ ଇଏ encrypt କରିଦେବା, so that value କାହାରିକୁ ଦେଖାଯିବନି, ସେଇଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା। but multiple ways ଅଛି, so multiple ways ତମେ ଦେଖିପାରିବ, ଏଠି ବି ଅଛି। କ'ଣ ଡାଉଟ୍ ଅଛି କି? ହ୍ୟାଲୋ।
Yeah. ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ସେଭ୍ ହେଇଗଲା and then ଆମେ trigger ଏଠି add କରିବା ଓକେ ତମେ trigger କଥା ପଚାରୁଥିଲ ନା ଏଠି ଆମେ କଣ ନାଇଁ debug କରୁଛୁ କଣ ନୋଟବୁକ୍ କହୁଛ ଟା ଆମକୁ କ୍ରିଏଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ ମାନେ ହଁ ହଁ ଆମେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ନା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍मेସନ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ନା ତମେ କ୍वेରି ନିଜେ ହିଁ ଲେଖିବ ନା ଏଜ ଏ ଡେଟା ଇଞ୍ଜିନିୟର କ୍वेରି ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ସो ନୋଟବୁକ୍ ଆମକୁ ହିଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ Okay? ଏଠି ଟ୍ରିଗର ଅପସନ ଅଛି ଟ୍ରିଗର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର ଟ୍ରିଗର ନାଉ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କର ଓକେ एंड एठी किसी ट्रिगर आम पाखे नाही सो आमे कौन करिया ऐड ट्रिगर न्यू एडिट ऊपर क्लिक करिया चूज ट्रिगर न्यू ऊपर क्लिक करिया गोटे ट्रिगर दे देबी मु एटी धरा जाऊ एटा कोन नोटबुक थिला ना सो नोटबुक ट्रिगर मु एटी लिख देली डिस्क्रिप्शन ऑप्शन अछि टाइप एटी देखो शेड्यूल ट्रिगर अछि टम्बलिंग विंडो ट्रिगर अछि स्टोरेज इवेंट अछि कस्टम इवेंट अछि सो चारि टाइप रो ट्रिगर अछि हम पाखरे अवेलेबल शेड्यूल ट्रिगर माने तमे शेड्यूल करछो को टाइम रे को दिन रे सेटा शेड्यूल करिवो धरा जाऊ तुम पाइपलाइन चलाउछ वीकली बेसिस मंथली बेसिस क्वार्टरली बेसिस सो बेस्ड ऑन दैट तमे शेड्यूल करला तुम पाइपलाइन को शेड्यूल ट्रिगर यूज कर पारिवो स्टोरेज ट्रिगर हैला जेतल तमरो हमरो जो कोनोसी स्टोरेज अकाउंट रे जदी तमे किछि स्टोर कलो फाइल स्टोर हैला से केस रे से ट्रिगर टा ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जिवो जेबे भी हमर स्टोरेज अकाउंट रे स्टोर किछि हैला ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन दैट हम ट्रिगर टा ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जिवो कस्टम इवेंट हैला कस्टम जदी तमे किछि हैला कि धरा जाऊ तमे आईओटी रो डेटा नहीं के आसलो माने लाइव डेटा हैला किछि भी जिनस तमे कलो बेस्ड ऑन दैट हम ए ट्रिगर टा चलिवो कि तमे सेंसर रो डेटा नहीं के आसलो तमे ताको स्टोर करि रखलो क्यू परे तमे एटा तापरे ट्रिगर करिवो कस्टम इवेंट से तळ काम रे आसीओ टम्बलिंग विंडो ट्रिगर कोन अछि अगेन तमे एठी तमे डिसाइड करि परिवो गोटे विंडो रो तमे मल्टीपल विंडो क्रिएट कर परिवो गोटे धरा जाऊ आर्ली बेसिस हम जॉब टा रन होची से आर्ली बेसिस भितरे तमे गोटे विंडो क्रिएट कलो कि धरा जाऊ 15 मिनट रे कल कि 10 मिनट रे आ गोटे विंडो क्रिएट कल माने अगेन से 10 मिनट भितर ट्रिगर हबो सो विंडो क्रिएट करिया कोंती टम्बलिंग विंडो ट्रिगर हला बट शेड्यूल ट्रिगर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यूज करछंती हला बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट डेटा हम यूज करिवा कोटा तम रिक्वायरमेंट धरा जो तम रिक्वायरमेंट हला एज एंड व्हेन फाइल स्टोर हला आसी की स्टोरेज अकाउंट रे इमिडिएटली आम पाइपलाइन टा रन हो इमिडिएटली माने तम जॉब ता किछि डिसाइडेड नाही कि तम एटा वीकली बेसिस चलिवो कि आर्ली बेसिस चलिवो कि मंथली बेसिस चलिवो किछि भी फिक्स नाही फिक्स कोथरे अछि एज एंड व्हेन तम फाइल आसी की स्टोर हला आसी की स्टोरेज अकाउंट रे इमिडिएटली हम पाइपलाइन टा ट्रिगर हे जाऊ से केस रे हम इवेंट बेस्ड ट्रिगर यूज करिवा इवेंट बेस्ड ट्रिगर आगुर थिला जाकी एटा स्प्लिट कर देछि स्टोरेज इवेंट एंड कस्टम इवेंट से केस रे तमे ए दुइटा इवेंट को तमे सिलेक्ट कर पारियो बट तमरो रिक्वायरमेंट अछि कि मो ए पाइपलाइन टा एवरी 1 आवर एग्जीक्यूट हो नो मैटर डेटा नुआ डेटा आसिला ना नाही मते फरक पडुनी मो प्रत्येक 8 घंटा रे कि प्रत्येक घंटा रे मो ए पाइपलाइन टा चलेबी से केस रे मो शेड्यूल ट्रिगर ही यूज करिवि एंड शेड्यूल ट्रिगर ही मोस्ट ऑफ द टाइम यूज हुए हमने ट्रिगर मु देखिनी यूज करिवार बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ही यूज हुए ऑब्वियसली हम कंपनी रिक्वायरमेंट के भी आसिनी आमे शेड्यूल विंडो ही ट्रिगर यूज करछु ओके तार स्टार्ट डेट लेख केबे स्टार्ट हबो स्टार्ट डेट 17 तारीख धर जो सेट कल टाइमिंग अच्छी टाइमिंग भी तुम सेट कर पारिबो एठी टाइम सेलेक्ट कर दियो टाइम सेलेक्ट कला परे टाइम जोन सेलेक्ट कलो हमर इंडिया लोकेशन धरि नियो टाइम हम सेलेक्ट करिवा 48 7टा 50 2 मिनट पर एटा ट्रिगर हेबो 10 सेकंड चल 0 सेकंड सेलेक्ट करो ओके ऊपर क्लिक कर दियो ओके एंड रेकरेंस पचाची एवरी मु 1 आवर सिलेक्ट करी माने पुणी आउ घंटे पर ऑटोमेटिक एटा चलला एटा हमें कोन बर्तन डिबग ऊपर क्लिक करथले माने मैनुअली एटा हमें ट्रिगर करथले एटा ऑटोमेटिक पुणी 15 मिनट पर पुणी एटा ट्रिगर हो पुणी 15 मिनट पर ट्रिगर हो तमे तो चाहबा को नार कर परिबो 60 आफ्टर 60 मिनट अगेन एटा ट्रिगर हो वर्तमान पे मु कर दोची आफ्टर 2 मिनट्स अगेन एटा ट्रिगर हो ठीक है जी स्टार्ट ट्रिगर ऑन क्रिएशन मु क्लिक कर देबी ओके
देन एठी लिखुची दिस पाइपलाइन हैज नो पैरामीटर। अच्छा, ये पाइपलाइन आमे किछ पैरामीटर देइ नथिले। ओके, दैट्स फाइन, कूल। ऐसा एटा हमें ट्रिगर यूज कले। एबे आमे कोन करिया, डिबग ऊपर क्लिक करिया, एटा ऑटोमेटिकली एटा एक्सिक्यूट हो, दैट्स कॉल्ड ट्रिगर। शेड्यूलिंग करिया पे हमें एटा यूज करे। बर्तमान पे हमर रिक्वायरमेंट नथिला, सेत पे मु ट्रिगर बुझु नथि। जेतल रिक्वायरमेंट प्रोजेक्ट हमें बनेगा सेतल हमें ट्रिगर करबा, जेतल हमें माइग्रेट करबा डेवलपमेंट ट्रिगर किछ काम रे आसे कि ना, प्रोडक्शन ट्रिगर काम रे आसे ना, ऑटोमेटिकली एटा रन हो। डेवलपमेंट ट्रिगर किछ काम रे आसे ना, काने डेवलपर माने डेवलपमेंट लेयर रे डेवलप करंदी, तांको ट्रिगर की काम, ट्रिगर प्रोडक्शन है थाए। बट देन एबे हमें काली कोन देखिबा, एक्स्ट्रा एक्टिविटी लाइक तमे को कहली, जेमि तमे पचाले गेट मेटा एक्टिविटी, से दिन से मोर भी कवर करे अछि। मु कवर करबी मो कोर्स रे अछि। गेट मेटा डेटा एक्टिविटी अछि, इफ एल्स अछि, एक्सिक्यूट पाइपलाइन अछि, पेरेंट चाइल्ड पाइपलाइन केमति को कॉल हबो, ए पाइपलाइन धर जो तमरो चाइल्ड पाइपलाइन अछि, आगु केमति कॉल करिबा पेरेंट पाइपलाइन ने, एटा भी इंटरव्यू क्वेश्चन पचारे, हाउ डू वी इन्वोक चाइल्ड पाइपलाइन इन पेरेंट पाइपलाइन। सो से सब एक्टिविटी भी हमर इंक्लूडेड अछि ए कोर्स रे। से सब जिनस खाली हमें कवर करिबा। देन ऑलवेज मु कहली ऑन सक्सेस जदी हबो, मु लिंक करथली दीटा, राइट। निमि पाइपलाइन 2 जदी मु देखिबी, ए दीटा लिंक करथली। ऑन सक्सेस जदी एटा सक्सेस हबो तेबे ही एटा जायकी एक्सिक्यूट हबो, अदरवाइज एटा एक्सिक्यूट हबनी, राइट। तो आमे देखिया खाली ऑन फेल, जदी फेल हे गला, फेल रे हमर पाइपलाइन टा फेल न हो, हमर अलगा किछि मेसेज डिस्प्ले कर दो कि हाँ पाइपलाइन गॉट फेल्ड, बट हमरो एटी न देखो कि पाइपलाइन टा फेल है। पाइपलाइन फेल हेइथिबो बट हमरो मेसेज आसीଯିବ पाइपलाइन फेल, बट बिहाइंड द सीन पाइपलाइन फेल न हो। से जिनस आमे देखिया फेल्योर पाइपलाइन केमिति हैंडल करिबा, से अभी देखिया से सब एक्टिविटी अछि हम कोर्स से सब जिनस देखिया। देन एडीएफ पार्ट कंप्लीट हे जिवो, आमे जीवा अजोर डेटा ब्रिक्स को, ठीक अछि। सो ए पार्ट जोटा मु कहली तुमको एक्सप्लोर करिया भी, सेटा हमें पहर दिन स्टार्ट करिया। बट तुमको मु कहूची ऑलरेडी मु मोर वीडियो जेहेतु अवेलेबल अछि, ए जिनसटा देखिनियो। मु निजे भी एक्सप्लेन करबी पहर दिन, बट तमर देखिनवाटा भी बहुत भल जिनस अछि हैला। तो एटा देखिनियो केमति कोन कनेक्ट करंती। चारटा वेज अछि, यूजिंग एक्सेस की, यूजिंग सर्विस प्रिंसिपल, यूजिंग एक्सेस सॉरी की वॉल्ट एंड सास टोकन, चारटा ऑप्शन अछि। से चारटा ऑप्शन देखो, एटा हम पहर दिन डिस्कस करिया। खाली अजूर डेटा फैक्ट्री को भी कंटिन्यू करिया, अलग अलग एक्टिविटी हमें देखिया। सिनेप्स एबे देखिया नि, सिनेप्स पर देखिया कंप्लीट होला परे, एटा गोटे डेटा वेयर हाउस। सो सिनेप्स यूज करिवा नि। देन अजोर फंक्शन यूज करिवा नि, काइना हमरा मेल फेल जदी यूज करिया से केस हम अजोर फंक्शन यूज हबा। डेटाबेस ऑलरेडी मु कवर कर सारिछि। पाइथन फाइल जॉब फाइल जदी अछि, यूएसक्यूएल यूज कर परिबा तमे। जनरल अपेंड क्वेरी अछि, डिलीट अछि, एक्सिक्यूट पाइपलाइन ए सब आमे यूज करिवा। फेल में गेट मेटाडाटा एक्टिविटी यूज करिवा, स्टोर प्रॉक यूज करिवा, स्क्रिप्टिंग अछि, वेब एक्टिविटी यूज करिवा। ए सब जिनस आमे यूज करिवा आसंता क्लास रे। सो ए सब जिनस तमे मु ही कहबी, एक्सप्लोर करिया दरकार नहीं किछि, जस्ट तमे एक्सप्लोर करो कोन जोटा मु कहली एटा। आउ थरे एठी तो देखौनी, बट तमे सर्च करे एठी मु लिंक पठे देबी। कनेक्ट डेटाब्रिक्स ADLS from Databricks using SAS token. और गोटे लिंक थिला, लिंक खाना आसुनी with SAS token. 1 second. According to link, one documents requirement. Manage identity store using external Azure portal CLI SQL resources configure. Store credentials workspaces. Okay. लिंकटा मिलुनी, चला किछि नहीं, तमे गोटे काम करो, एई वीडियोटा ही देखो। अगेन मु तुमको एक्सप्लेन करबी टोटल चारटा वेज कोन अछि, केमति अछि, से सब जिनस हम एक्सप्लोर करिया। बट ए वीडियोटा देखिनियो। एंड जदि चाहिबो तमे डेटाब्रिक्स स्टार्ट करो। यूट्यूब देखिए कि मैजिक कमांड कोन होला।
डेटा फ्रेम केमती कौन क्रिएट करते ମୁଁ ବି ବୁଝେଇବି ତମେ ଭାବନା କି ତମେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ମୁଁ କହୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବି ଏଇଟା ରିପିଟ୍ କରିବି ରିପିଟ୍ ମୋଡ଼ରେ ଚାଲିବ ବଟ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଟାଇମ୍ ଅଛି ଯଦି ଦେଖ ଏ ଜିନିଷଟା ହେଲା ତ ଷ୍ଟେପ୍ ବୁଝିଗଲେ କେମିତିକା ଆମ ଏସବୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ଆଜର ଡେଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ନୋଟବୁକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି କେମିତି କ'ଣ କଲ୍ ହେଲା ଜାଣିଲ ଏଇଠି ଆମର ଦେଖ ମୁଁ କହିଥିଲି ନା ରନ୍ରେ ଆସିକି ତମକୁ ଶୋ କରିବ ଲଗ୍ଟା ଏଇ ରନ୍ରେ ଶୋ ହେଉଛି ଯାହା ବି ତମ ଜବ୍ଟା ଚାଲିବ ଏଇଠି ଆସିକି ତମକୁ ଶୋ ହବ ରନ୍ସରେ ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପାଇପଲାଇନ୍ ବି ଥିଲା ବଟ୍ ଆମେ ୟାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା ବଡ଼ କରିବା ପାଇପଲାଇନ୍ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସ୍ରେ ଠିକ୍ ଅଛି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଆଜିରେ ଆଗକୁ ଚାହିଁଲେ ପବ୍ଲିଶ କରିପାରିବ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ करते ହଁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର ହେଲା हैं ରେକର୍ଡ଼ିଂଟା ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଏଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗିଲା ପରେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ପଠେଇ ଦେଉଛି